on board. You can check carefully. It is previous data. In previous lecture, we discuss about oxidation state of oxygen in different state like oxide, superoxide, peroxide. So today I will discuss about this in brief. So wait for concept and new techniques, because in previous day I tell you I tell you oxidation state in different compound, different cases, but not you have any idea regarding to oxidation number find out technique. Okay, so today I discuss about the technique by which we find oxygen state in different case of oxygen. So I think this concept and this notes also present on I think due to network issue, maybe there's some problem, but don't worry. By any reason, if I am unable to take your class properly, then I arrange one more class in evening. So first I continue this class, okay? I think you have your previous data in notes. And again, I tell you, today I have done assignment portion. So you can check your assignment. There is notes present related to this concept, something previous and something current concept. So let us start this concept. Before starting this concept, you need all data. So I tell you one by one. First, I take oxidation state in case of oxygen. So I take first +2 oxidation state. Okay, +2 oxidation state. Okay. So today we are going to discuss about +2 oxidation state in case of oxygen. So how we find +2 oxidation state? If is there any issue, then you can write in comment section. By mistake or due to network issue, we have not properly seen you our screen or board. So I think in present time it is clear. Solution. How we say oxygen, so +2 oxidation state. So before starting this concept, you need to electronegativity difference of order of electronegativity. One more things I write here roughly. Electronegativity I write in short form. Electronegativity increases. Okay, electronegativity increases left to right. So कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैंने पहले से लिख दिया. लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है. सो इन दिस कॉन्सेप्ट वी डिस्कस अबाउट लेफ्ट टू राइट. सो फॉर एग्जांपल आई टेक हियर कब हमारा ऑक्सीडेशन का +2 होगा, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, वो आता है OF2 in case of OF2. But how? So first I draw here oxygen, single bond, chlorine, and again single bond, again oxygen, fluorine. So now you can check here is a OF2. So in oxygen and fluorine, which is more electronegative? Tell me. बेटा हमें बताएगा कोई कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? एनीवन? अगर आप हमें बता देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा. अगर आपको नहीं पता है तो 7th ग्रुप का एलिमेंट फ्लोरीन है एंड 6th ग्रुप का ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन पहले आएगा लेफ्ट टू राइट. जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो कैसे आएगा? देखिए इस पे 1 to 7 होगा. ठीक है, फ्लोरीन बहुत अच्छे. तो अगर इनका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इफ वी ब्रेक दिस बॉन्ड,
देन हु टेक दिस इलेक्ट्रॉन, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फ्लोरीन लेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है स्पीसीज वही इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज टेक इलेक्ट्रॉन आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड। सोचो अगर इस तरह से कंडीशन आई, समझिएगा बहुत अच्छा है, ने रिप्लाई किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस पे क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आएगा चार्ज, हमें बताएंगे आप, प्लस का 1 चार्ज आएगा, एक फ्लोरीन की वजह से, और दूसरी फ्लोरीन की वजह से भी आएगा प्लस का 1 चार्ज। आई थिंक से ओवरऑल चार्ज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता कितनी आ जाएगी, प्लस का 2। तो आपको पता चल गया ना ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी स्पेशल केस में कितनी होती है, +2 ना। बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया होगा। इफ एस देन यू कैन रिप्लाई वाई। ये बात आपको समझ में आई ना, +2 कैसे हो रहा है। ओके, आई टेक नेक्स्ट कंडीशन मीन्स बी, हेडिंग बी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए, +1। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेई मेंस के लिए, नीट्स के लिए, इसलिए मैं सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर रहा हूँ, बेहतर आपको समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हमें लेना है, तो एग्जांपल में हम आ जाते हैं थोड़ा सा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एग्जांपल हमारा सिंपली क्या है, O2F2 है, O2 and F2, but you say sir how O2F possible because fluorine have single valency, so don't worry, O2F2 का केस कैसा होगा देखते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन देन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड लगाते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से सिंगल बॉन्ड, हम थोड़ा सा इस तरह से डॉट बना के लगा देते हैं, आप समझ लेना वो बॉन्ड है, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकती है। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ये डॉट डॉट हमने बनाया पर डॉट नहीं, आपको डार्क बॉन्ड बनाना, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए बना दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात। अच्छा आप कॉमन सेंस लगाओ, हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का होता है 0। अगर आपको याद हो इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, देखिएगा इतनी दूर, ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या इस ऑक्सीजन की वजह से ये कोई इलेक्ट्रॉन इधर देगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, नहीं, बिकॉज बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दोनों सेम टाइप के इंसान हैं, सेम गरीब अमीर हैं, तो ये दान नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0, और इसका भी क्या आएगा, 0। अच्छा ये जो लिंकेज होता है ना, समझिएगा, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज, लिंकेज, ठीक है। ये बात समझिएगा, यही आने वाला अगले कॉन्सेप्ट में। सोचो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन का नंबर, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अब आपको क्या पता है, सर अभी तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन है, फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या आएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, और इसकी वजह से इस पर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो न लिखिएगा। सेम कंडीशन फॉर दिस फ्लोरीन, 1 माइनस चार्ज एंड हियर 1 पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ना जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे, 2-3 लोगों ने हमें रिप्लाई किया, बाकी लोग भी रिप्लाई करें, अच्छा लगता है। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन पे देखिए कितना चार्ज आया, एक ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बोला था ना, चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है ना, तो ये आपका आ गया प्लस का 1 चार्ज। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स बनाने में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए ना, जब आपको लगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया सर हटाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। आई होप ये आपको ये भी समझ में आ गई होगी। ये दूसरी हेडिंग थी, ये हेडिंग आपकी कौन सी थी, बी थी, मतलब हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है केस सेकंड केस में। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस थर्ड, मतलब कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिएगा ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? तो आपको पता है, इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ना, इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल लिखिए, डायरेक्ट आप एग्जांपल लिखिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी चीजें हमने आपको बता दी ऑलरेडी। O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कोई बताएगा हमें? एनीवन टेल मी? तो हमने तो यहाँ बोर्ड पे पहले से मेंशन कर दिया है, देख लीजिएगा आप। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और इधर का जो बॉन्ड होगा फ्री हो जाएगा, इधर का जो बॉन्ड होगा ये भी क्या होगा, फ्री हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होगा बाबू, यहाँ पे होगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से लगा देते हैं। बट ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में बोथ स्पीसीज हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो कोई नहीं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको बताया था, फ्री रेडिकल बनता है। ये कंडीशन क्या टोटली रॉन्ग है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा तो इसमें क्या चार्ज आएगा? नहीं, चार्ज नहीं आएगा, चार्ज जीरो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं आई तब भी लिख दीजिएगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो भी लिखिएगा, नंबर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ अंजलि यादव, कुछ कहना है तो आप कमेंट में लिख सकती हैं, अगर आप कुछ कहना भी चाहें तो बोल सकती हैं। प्रतिभा वर्मा, हैव यू एनी डाउट? नो सर। ओके, चलिए, अगर आइडियो क्लियर नहीं होगी बता देगा, मैं माइक लगा दे रहा हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमने सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बता दिया, एनसीईआरटी की तरह मैंने रट्टाफिकेशन नहीं बताया आपको। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, जो मेरी नोट्स अगर आप बना लेते हो तो आपको किसी की नोट्स या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन व्हेन इट्स सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत अच्छे, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर जो भी आपको लिखना हो। चलिए -1 में आ जाते हैं। -1 में कब आएगा, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जब ये -1 शो करेगा तो केस होगा सुपर सुपर ऑक्साइड। ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी, परेशान ना होना, बहुत अच्छा लगेगा, आप पहचान लेंगे। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, ये -1 होता है। इसका जो सिंपल सा एग्जाम्पल होता है K2O, सॉरी KO2 होता है, KO2। सेकेंड एग्जाम्पल होता है RVO2। चलिए, बट आपके समझ में ना सर, हाउ इट इज पॉसिबल इट्स सो -1, बिकॉज यू नो ऑलवेज फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई यार सर, आपने चलिए, आई थिंक फिर से हम एक बार कनेक्ट हो चुके होंगे। बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, इसलिए हमें लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
पर आपको ये बातें समझ में आएगी। मैंने -1 लिया था, अभी डिस्कस नहीं हो पाया था, और एक और लिया क्या, -1/2। तो चलिए कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, -1 कब शो करेगा और -1/2 कब शो करेगा। तो हम दोनों एक साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। -1 और -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए दोनों करते हैं एक साथ में, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर प्लीज चेंज ग्रीन कलर। ओके सर यार, आप लोग बार बार कहते हो, मैं वही कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक बार आपको ये थोड़ा सा हेडिंग आप मैनेज कर लीजिए, इसके बाद मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, डोंट वरी यार। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा ये टूल का मिस यूज ना करें। चलिए D-1/2 ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, जो भी लिखना हो यार लिख लो, और थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है इसलिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यार कि जब हमारा -1 और -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो क्या केस होगा। आई थिंक से मैंने आपको बता दिया था, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, ये इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड होगा। कैसे पता चलेगा सुपर ऑक्साइड, तो चलिए पता करके देखते हैं। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, तो भाई सुपर ऑक्साइड का भी बेटा टूल का मिस यूज ना करो प्लीज, मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी आप डिस्टर्ब करते हो, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टूल का मिस यूज ना करें। चलिए आप टाइम लॉस ना करें सर प्लीज, क्या बोले भाई आप, सर प्लीज बोल्ड द लेटर। ओके ओके ओके, मैं लेटर को भी बोल्ड कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, बोल्ड लेटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एज योर भी सब जैसा, स्क्रीन को बेटा आप जूम कर लीजिए ना, लेटर बोल्ड हो जाएगा। स्क्रीन अपनी जूम करिए आप, मेरी स्क्रीन जूम करवा देंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आरबी RbO2, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल फॉर सुपर ऑक्साइड एंड सेकंड है KO2। चलिए हम इसको कर लेते हैं, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि ये हम जो कह रहे हैं सही है कि नहीं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता भी है कि नहीं। तो इसका जो कंडीशन होता है, चलिए पहले हम पोटेशियम के केस में देख ले रहे हैं। ये पोटेशियम का कौन सा ऑक्साइड है, तो आपको मैंने बता दिया, सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पहचान कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर सुपर ऑक्साइड, चलिए देखिए कितने ऑक्सीजन थे, तो ऑक्सीजन हमारा 2 था ना, समझिएगा। सुपर ऑक्साइड कैसे बनते हैं, ये भी हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए ऑक्सीजन हमारे कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो ऑक्सीजन जो जनरली हमारा बनाता है डुअल बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे सर अगर ऑक्सीजन डुअल बॉन्ड बनाता है तो ये तो पोटेशियम है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ बेटा, ये पोटेशियम सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, मैं डुअल नहीं बनाऊंगा, भले बनाया हूँ पर आपको समझा रहा हूँ डुअल बॉन्ड है ही नहीं हो। ये कंडीशन है सुपर ऑक्साइड की, समझिएगा सुपर ऑक्साइड कैसे। तो देखिए कॉमन सेंस लगाइएगा, पहली बातों को समझ लेते हैं। अगर बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज, तो ये कैसा लिंकेज होगा आपको पता होगा, दिस इज, अब रिप्लाई करिए कौन सा लिंकेज है ये कौन सा लिंकेज है, कोई हमें बताएगा। दैट इज पर ऑक्साइड लिंकेज है। अभी ये भी आने वाला कॉन्सेप्ट को पहचानना पड़ेगा। पर ऑक्साइड लिंकेज कब बोलेंगे, जब कोई ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इतनी बातें तो पता ही है पहले कॉन्सेप्ट से, इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 0। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना ही देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना लेगा इससे ना लेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन नंबर 0। इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। बट यहाँ पे बात करें, ये जो बॉन्ड है ना, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये लाइट बॉन्ड। लाइट बॉन्ड मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये डॉट टाइप का होता है, समझिएगा ना, मतलब ये हाथ आधा बॉन्ड माना जाता है इसको। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, डार्क बॉन्ड होते हैं, लाइट बॉन्ड होते हैं, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत पहले पढ़ा दी गई, इसीलिए वो चैप्टर पहले पढ़ाया गया था, ठीक।
ठीक है। ये जो बॉन्ड लाइट बॉन्ड मतलब आधे बॉन्ड है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बनाया पूरा है, लेकिन आप आधा समझिएगा क्योंकि टूल ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, टाइम खत्म हो जाता है। अब जब ये आधा बॉन्ड है ना, तो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, इससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज 6 ग्रुप एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इससे लेगा। लेकिन ये बॉन्ड कैसा था, लाइट बॉन्ड, आधा बॉन्ड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है ना, क्या आएगा, माइनस का आधा आएगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हुई कैसी है, आधी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी जो होगा ये क्या आएगा, माइनस का 1/2। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो 1/2 लिखा, 1/2 1/2 जोड़ करके 1/2 की जगह पे हम 1 नहीं लिख सकते। नहीं, ये देखिए पर्टिकुलर ऑक्सीजन के केस में, ये इस ऑक्सीजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए, अगर दोनों एक ही ऑक्सीजन पे आता तब हम ऐड करते, ठीक है, ये बात आप समझिएगा। अब ये देखिए इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, प्लस का 1/2, समझिएगा ना, प्लस का 1/2 चार्ज आ गया इस पर, और यही कंडीशन इसमें भी आ जाएगी, इधर वाले केस में, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑक्सीजन, ये भी आ जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, प्लस का 1/2। तो आपको समझ में आया ना, ऑक्सीजन -1/2 कब शो करता है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो पेरोक्साइड भी है। हाँ पेरोक्साइड है, लेकिन जब पेरोक्साइड आएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन होगा ना, खाली अगर पेरोक्साइड रहेगा तो -1 शो करता है। तो चलिए अगली जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेंगे। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो केस किसका है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इसमें भी ऐसे ही बनेगा, आरबी वाले कहिए तो हम बना दे, तो आप कर लीजिएगा आरबी आरबी। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, सिंगल बॉन्ड से लगाना पड़ेगा 2 ऑक्सीजन, बट ये हाफ हाफ बॉन्ड होगा, हम बता दिए आपको पहले से, ये हाफ बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। चलिए अगला क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन दोनों तरफ हो जाएगा। अब आप कर लीजिएगा, इसमें आपको खुद से करना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट आपको बता दूँ। अब इतनी चीज़ें टिपिकल नहीं भी नहीं जो आप ना जान सकें, ठीक है। ये अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये लिंकेज क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज, और ये टोटल क्या है, यहाँ पे हाफ हाफ बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है। आई होप बातें समझ में आई होंगी, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज हम चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि नया जो पॉइंट है, हमने देखिए -1/2 भी बात कर लिया, अब हमें बात क्या करना होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज पॉइंट है ई पॉइंट है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं इन केस ऑफ पर ऑक्साइड। अब आपको पर ऑक्साइड से कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए ये जब क्वेश्चन आया था पहली बार नीट में आया था 2016 में, तो उसमें उन्होंने यही पूछा था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए इन केस ऑफ H2O2, और एक बार यही तो पूछ लिया था ना कि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक्चुअली पहले हम स्ट्रक्चर पे ही बात कर लेते हैं। जो H2O2 है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक शेप, खुली किताब नुमा होती है। बट जब मैं बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई भी किताब खुली नहीं है, सारी किताबें बंद हैं। तो आप परेशान ना रहिए, आपकी सारी किताबें आपको खुली ही दिखाएंगे, ठीक है। H2O2, अब अपनी किताब ले लीजिएगा खोल के, इनके तीनों साइड को ध्यान में रखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सर ये किताब खुली लग रही कि नहीं। फिलहाल अगर नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, आप आइएगा, 3D आपको एनिमेशन के तरीके से दिखाया जाएगा। इस लेक्चर में भी हो सकता है, पर इस लेक्चर का टॉपिक नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है जो पहले से आपको बताया जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। देखिए ओपन बुक स्ट्रक्चर है, आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा, ठीक है। अगर यकीन ना, तो जिस पे आप रामायण रख के पढ़ते हैं, कुरान रख के पढ़ते हैं, उसका शेप देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। बट आप 3D दिखाएंगे बोर्ड पे, थोड़ा दिक्कत होगी। डोंट वरी, आप परेशान ना होइए। चलिए जो हमें समझना हो समझते हैं। अब ये ऐसा है कि मुद्दत लोन पे रिपल्सन की तरह, उसके लिए आपको बेस पर थियरी पढ़नी होगी। बेस पर थियरी के लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, ये दोनों क्या है, ये देखिए लिंकेज कैसा है, पता चल गया कैसा लिंकेज है, कोई हमें बताएगा कमेंट में। इस टाइप ऑफ लिंक इज प्रेजेंट हियर सर, आईडी ऑफ करवा दीजिए। बेटा काहे आप लोग अपनी बदमाशी से मुकर नहीं रहे हैं, आदित्य पांडे आपका दिमाग खराब है, एक बार आप स्किप हो रहे फिर आ रहे हो। बेटा आईडी अपनी आप करो, कुछ पूछना हो कमेंट में लिख दो यार,
अभी जब हम कहते पूछो तो आप ऑडियो ऑन करके तब पूछ सकते हो। आदित्य पांडे, और कोई है? नहीं, कोई और नहीं है भाई। और अपने लोग आप ऑडियो को ऑफ रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो यार, पढ़ाई के समय डिस्टर्ब ना किया करो, ठीक है? क्योंकि जब डिस्टर्ब हो जाता तो पढ़ाने का मजा नहीं होता। ये कौन सा लिंकेज है? दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। अभी आपको पता है पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। बहुत अच्छे कि आदित्य अग्रहणी जी ने हमें रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा। ये पर ऑक्साइड लिंकेज क्यों, आपको पता है ना इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? एनीवन टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? एनीवन? इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। किसी ने रिप्लाई किया क्या? इसका भी क्या होगा? जीरो होगा। बट किसके रिस्पेक्ट में? इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अब कोई हमें बताएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा? रिप्लाई करिए फटाफट, अब जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एनीवन टेल मी? इसके बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएंगे, थोड़ा जल्दी करिएगा, रिप्लाई करिए हमें। ओके, बहुत अच्छे। आदित्य जी ने कहा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत गंदी बात है यार, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन आपका कौन लेगा, आप बताएंगे हमें? ऑक्सीजन लेगा या हाइड्रोजन लेगा? हु टेक इलेक्ट्रॉन, बताइए फटाफट। हाइड्रोजन लेगा इलेक्ट्रॉन, गलत आंसर है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका ऑक्सीजन का ये वाला पार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज आएगा। इस पर भी क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 1 चार्ज आएगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 चार्ज, प्लस 1 चार्ज। अगर आप चाहें तो आज शाम को भी आपकी एक क्लास रखी जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इस टॉपिक को ख़त्म करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहिएगा, जो भी डाउट हो आप पूछते रहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे सारा आंसर दिख रहा होगा, किस पे क्या चार्ज है। हाइड्रोजन पे भी जो चार्ज है वो भी दिख रहा होगा, और ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। दिखा आपको किस पे क्या चार्ज, मैंने ड्रा कर दिया था ऑलरेडी। अब बात कर लेते थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है, जब हमारा ऑक्सीजन -2 शो करेगा। मैंने आपको +2 +1 0 -1 -1/2, अब -2 की बात करते, लास्ट टॉपिक है इस ऑक्सीजन के केस में। व्हेन एफ पॉइंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ही सिंपल है यार। एक्चुअली जनरल केस में, जनरल केस सभी केसेस में कह सकते हैं, ऑल केस, इन ऑल केस, मतलब कि जो नॉर्मल केसेस हैं, इन नॉर्मल केसेस, ऑल मत लिखिए, नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल ऑक्साइड में ही शो करेगा। ऐसे पता चलेगा, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं और करके भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है यहाँ पे H2O, एक एग्जांपल हमने ले लिया है H2O। सो यू नो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O, यू कैन ड्रा हियर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देयर इज 2 हाइड्रोजन, सो लाइक समथिंग। अगर आप सीधा बनाते हैं तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, सीधा नहीं बनेगा ड्यू टू लोन अकॉर्डिंग टू बेस्पर थियरी बॉन्ड विल बी वेंट, और इसके बॉन्ड एंगल भी थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आप बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा तो -1 चार्ज आएगा, इससे लेगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज आएगा। जब ये देगा इलेक्ट्रॉन एक तो इस पर आएगा प्लस का 1 चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आएगा प्लस का 1 चार्ज। तो ओवरऑल अब देखिए, हमने बताया था जब ये कोई चीज ऐसी हो कि एक ही ऑक्सीजन पे दो तरफ से चार्ज आ रहे तब ऐड कर सकते हैं। अब ओवरऑल चार्ज कितना है, ये चार्ज आ जाएगा -2, ठीक है, -2 चार्ज आ गया, समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए फटाफट अपनी स्क्रीन को। आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट में लिखिए अगर आ गया हो। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, समय बहुत कम है। बहुत अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट आपको एक हेडिंग वाइज हेडिंग करनी है, असाइनमेंट में भी भेज दिया, बट आप कोशिश किया करो ना, मेरे साथ ही रफ पे वर्क कर लिया करो, ये सब बना लिया करो। फेयर कर पाते हो तो फेयर कर लो, मैं बहुत स्लो लिखता हूँ। बहुत अच्छे आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप वाई लिखिएगा, मैं फटाफट इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है, यस सर, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना? ठीक है, नहीं लिए तो फिर से ले लीजिएगा, मैं फिर से कर दे रहा हूँ एक बार स्क्रीन को। ठीक है, हटाता हूँ। हमारी न्यू हेडिंग होगी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ आर हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर स्टेट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन हमारा। आपको पता है हाइड्रोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कोई हमें बताएगा? अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा हमें। और हाइड्रोजन कैन शो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं इतना बता दिया हूँ, पर आपको बताना है क्या क्या। एनीवन टेल में पहला क्या होना चाहिए? पहला तो हमारा हो जाएगा भाई साहब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एनीवन यार रिप्लाई करो, फास्ट करो। और दूसरा हो जाएगा प्लस का 1, और एक और हो सकता है, वो हो सकता है माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है, पर कैसे कैसे, तो इसमें भी हम पहले की तरह एक एक करके हेडिंग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल करना पड़ेगा, नहीं तो आप मानने वाले हो नहीं, और मैं भी नहीं मानने वाला हूँ, आपको कहाँ बताऊँ। 1 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते शॉर्ट फॉर्म में। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल H2O, सॉरी H2 होगा कि नहीं, या सर नो बताइए। नहीं पता तो हम करके दिखा दे रहे हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, जब बॉन्ड ब्रेक होगी, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसा होगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक तो होगा, बट ये फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा। देयर इज नो चार्ज, मतलब ये इधर भी नहीं जाएगा और ये इधर भी नहीं जाएगा। सो इन दिस केस इट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यू कैन से। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। इट्स सो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन सेकेंड केस थोड़ा फास्ट करते ताकि ये खत्म हो जाए। सेकेंड केस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, +1 ऑक्सीडेशन चलिए ये आपका हेडिंग है आपकी बी। ठीक है, बी हेडिंग है। तो इसमें कैसे होगा? एक्चुअली आप कह दीजिए ना कि जनरल केसेस में सभी में क्या होता है, +1 ही शो करता है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। इन जनरल इट्स सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। और जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग NH3 की बात कर लेते हैं, NH3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग -1 भी समझ लेते, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी कौन सी? सी हो जाएगी। दो साथ में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझ लेना ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। चलिए बात करते हैं, आप खुद ही बताइएगा, बताएं आपको ये -1 कब शो करेगा? इन केस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप मेटल, अभी कुछ के साथ, जब फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल होगा ना, तभी ये क्या करेगा, आपका +-1 शो करेगा। चलिए ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaH, सेकंड एग्जाम्पल NaH, सेकंड एग्जाम्पल LiH। ठीक है, इधर कर लिए हमने, एग्जाम्पल कर लिया, फटाफट बना करके देख लेते हैं। अगर बात करें सोडियम यानी सिंगल बॉन्ड H, सेकंड एग्जाम्पल फॉर लिथियम,
लिथियम एलाई सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एलाई सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा भाई साहब, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इधर कर लेते हैं हाइड्रोजन, नीचे की तरफ भी एक बॉन्ड लगेगा, थोड़ा उसको भी ड्रा कर लेते हैं। अब ये सारे बॉन्ड तो प्लेन में है, मैंने डार्क लाइट बना दिया है, बट आपको बहुत पहले बता दिया था कि आप भी प्लेन में बनाइए, डॉट में मत बनाइएगा। फिर से सुन लीजिएगा कान खोल के, अगर उंगली डाल रखी है तो, ठीक है। चलिए ये बातें कर लेते हैं। देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और मेटल है, तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। यू नो हाइड्रोजन हैव टू प्लेस, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेवन ग्रुप एलिमेंट। तो अब ये सब बात नहीं करते हो, आपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बात किया होगा, विवेक सर ने किया होगा, बट यहाँ पे आपको इतना बताते हैं कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन केस ऑफ सोडियम, तो ये होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस पर आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसे इधर भी सेम केस होगा, तो आ जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, इसके कंपेरिजन में क्या है ना, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जिसकी वजह से इस पे आता क्या है जिसकी वजह से इस पे आता है +1 चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ज क्या आ जाएगा, +1, और यहाँ पर भी आपका चार्ज क्या आ जाएगा, +1, और यहाँ पर भी आपका चार्ज आ जाता है +1। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। और भी केसेस होते हैं, EV1 क्या है भाई, क्या लिख रहे हो, मैं आपके थोड़े कमेंट भी पढ़ लेता हूँ।